Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of the subject physics, and today we are going to start the topic of capacitor, which is in connection with our primary topic electricity, and this is the fourth lecture of the series. So in this lecture you are going to learn what is capacitor and how capacitor may work in the environment where the electric charges and the potential difference is involved. So let's start our today's lecture by starting the definition of a capacitor. What is capacitor? In your opinion, what is capacitor? Here, if you are focusing on this area, there are a lot of capacitors in the diagram. If you process that, see, these are the capacitors which store the data. These are the capacitors as well, and this battery is also acting as a capacitor. So probably you guess what is capacitor. Capacitor is nothing but it is a device to store the charge and the electrical energy. Capacitor क्या है? एक ऐसी device है which can store the charge as well as the energy. So how this storage of a charging may take place? So let's take a close look how this phenomena will be happening and how capacitor may work. अच्छा, इसकी एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखना चाहें तो यू हैव अ फैंस इन योर होम, उसके अंदर ऊपर कैपेसिटर होता है, जरा सा पंखा हल्का चलता है, अम्मी कहती है नया पंखा लगाना है, तो पापा कहते हैं नहीं पहले कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं, मे बी के चार्जिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं आ रही होगी, दैट इज़ वाई इट बिकम्स स्लो, उसको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द लेस चार्जिंग capacity. So let's start discussing about the working of a capacitor primarily, and then we will continue with the rest of the topic of our lecture. Hello viewers, if you like our online lectures, keep subscribed to our both YouTube channels, the NCPSS, and the next one is Professor M.M. Manzoor Official. Alright, so let's go back to the business, and we were discussing about the capacitor. So what was the capacitor? As I told you in the beginning of a lecture, capacitor is nothing but it is a storing device which can store the charge and electrical energy. So ये बात समझ में आ रही है how we can make a capacitor बनेगा कैसे? So this is a basic diagram. In this diagram we have two electrodes. One is a positive electrode and another is a negative electrode. We connected them together and give them a certain voltage on the basis of which it will be going to store the certain charge. Okay? So what is the actual working? We are actually taking the two metal plates A and B as it is shown in the diagram. You are probably seeing that are fixed on an insulated strand. ये जो strand है हमारे पास, this strand is an insulated strand, and then we charge the metallic plate A with the positive charge. If you are seeing that this is a positive charge which is stored on the metallic plate A, and similarly when this can be done by rubbing the glass rod against the silk cloth, whatever the mechanism you are following. If you remember my lecture about the induction, probably it will be the good idea to do the things accordingly. ठीक है, तो यहाँ तक बात आपने की, और उसके बाद यहाँ पर होगा क्या, उस रबिंग की वजह से देयर शुड बी द चार्जेस स्टोर्ड ऑन द A plate, and just because A got charge, तो similarly A की वजह से the other plate have a negative charge induced on it. Why? Reason is very quite simple, because of a induction, and these positively negative जब hold to each other, they stored electrical energy, and this is what we call the capacitor. ठीक है, और फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं when we connected it externally with the external source, तो this energy will be dissipated or the disseminated accordingly. Okay, so let's take a look on this animation. You have got the positive charge of the plate A as well as the negative charge by the induction process be stored on the B, and when this is going to connect externally, you can use that electrical energy or the charges which is stored on the capacitor. Here the main point is that how much a charge is stored on the plates. So it must be
clear in the mind that charge यानी कि Q should be directly proportional to the number of a potential difference, to the potential difference provided to the both charges. जितना potential difference दिया जाएगा, बट ये बात याद रखें, ग्लास की कैपेसिटी में जितना पानी है उतना तो वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जब कैपेसिटी ओवर होगी तो फिर वो ग्लास मजीद पानी को गिराना शुरू कर देगा. सिमिलरली कैपेसिटर विल डू. द कैपेसिटी ऑफ द प्लेट्स आर लिमिटेड एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग द वोल्टेज, द चार्जेस स्टोर्ड on them will be directly proportional to the voltage. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो charges हैं that should be directly proportional to the voltage. ठीक, किसके directly proportional है? voltage के directly proportional है. So if we manipulate this we will got the क्या मिलेगा में जो चार्ज है दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे साइन भी बना देता हूँ माउस से, ये आपको याद होगा, ये अल्फा या और ये किसके बराबर है? v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो इफ यू रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन इट शुड बी इक्वल टू द किसके बराबर आएगा? ये Q इज इक्वल टू द कांस्टेंट. और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? C इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. C एंड V. C इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. सो दिस फार्मूला डिमार्केट द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रिलेशनशिप अमंग क्या भाई? अमंग द जी हमारे पास अमंग द चार्ज capacitance of a capacitor and that of the voltage. So it means यहाँ पे कितनी ये जो गुंजाइश है, इस गुंजाइश को हम capacitance of a capacitor कहते हैं. तो here the time to discuss about the value of this one कि जी what is a unit of a capacitance of a capacitor. So if Q equal to CV, we can rewrite this C is equal to Q divided by V, राइट? ये आप लिख सकते हैं. तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ये हमारे पास? भाई Q का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट क्या है? कोलम्स. और डिवाइडेड बाय वोल्टेज का यूनिट अभी हमने पढ़ा था V है, वोल्ट है, चार्ज पर कोलम है. सो कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? एज दिस वाज प्राइमरीली डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे, सो दिस यूनिट इज बीइंग डिनोमिनेटेड एज फैराड. क्या कहते हैं इसको? फैराड कहते हैं. फैराड, RAD, फैराड. ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? फैराड कहेंगे, RAD कहेंगे फैराड. बट फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट. क्या बात है, याद रखें, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट. सो वी आर यूजिंग पंखे के अंदर या दूसरी जगहों पे जो कैपेसिटर का हम यूनिट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द माइक्रो फैराड और नैनो फैराड और पिको फैराड. दीज आर द थिंग्स विच वी आर यूजिंग. हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम? इनको कैसे? ये माइक्रो फैराड है, ये माइक्रो का निशान बना लिया और साथ में ये हमने F बना दिया, ये माइक्रो फैराड हो गया. और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 to the power -6. क्या होता है माइक्रो का मतलब? 10 raised to the power माइनस क्या होगा? माइनस का 6 होगा. याद रहेगी ये बात. 10 raised to power -6 हमारे पास है माइक्रो. इसी तरह पीको है तो ये पीको फैराड में P, स्मॉल p के साथ बनेगा. अगर आपने चैप्टर नंबर 2 का जो है लेक्चर देखा है तो स्मॉल p और इसके साथ ये फैराड का निशान आ गया F. ठीक है, पिको फैराड है एंड दैट पिको फैराड शुड बी इक्वल टू द पिको फैराड किसके बराबर है? 10 की पावर -12. यानी 2 दफ़ा माइक्रो फैराड लिखें तो आपके पास पिको फैराड हो जाएगा. इज दिस मेक सम सेंस? आपको समझ में आ रही है ये बात? क्लियर हो रही है? -12. ठीक है, 10 की पावर -12 पिको फैराड. सो दीज आर द यूनिट्स विच ऑफ्टन वी आर यूजिंग फॉर डिनोमिनेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी एंड दिस इज मेकिंग सम सेंस टू यू. लेट्स मूव अहेड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द EMF? एक और टॉपिक इसमें कवर करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है. Okay, so what is EMF? EMF stands for the electromotive force. And what is this electromotive force? This is actually the energy supplied divided by the charge. What this mean? पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके मीनिंग्स को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इसके मीनिंग्स बनते हैं. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है आपके पास? E.M.F. ये EMF जो है बराबर होगा हमेशा किसके बराबर होगा? एनर्जी. ठीक है, एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा आपको इस एनर्जी को? जी जनाब, विद द चार्ज. जो चार्ज को दूसरे चार्ज से सेपरेट करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल द
एनर्जी ऑफ अ चार्ज। यहाँ तक समझ में, ये इसका फार्मूला है, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला ऑफ दिस वन इज, ये आपके पास फार्मूला आ गया, क्या चीज़ बन गई, हाँ ओके। तो ये आपके पास जो है फार्मूला मौजूद है, इस फार्मूले को आपने गो थ्रू करना है, और वंस यू डन द फार्मूला, वंस यू मेमोराइज द फार्मूला, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन के ईएमएफ है क्या। अच्छा, इसका यूनिट वही है जूल पर कूलम, एनर्जी का यूनिट भी वही होता है जो वर्क डन का होता है। व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वर्क डन हियर, बिकॉज वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी जो हमारे पास था, पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट डी, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द, क्या था हमारे पास, वर्क डन, ठीक है, क्या था हमारे पास, वर्क डन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे थे वर्क डन को हम, चार्ज से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर रहे थे। तो बोथ आर द सिमिलर थिंग्स इफ यू आर थिंकिंग, नो इट इज़ नॉट द सिमिलर, देयर इज अ माइनर डिफरेंस, एंड इन अ कपल ऑफ मोमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस ऑफ दीज टू। बट द यूनिट, इन द केस ऑफ यूनिट, इसका यूनिट वोल्टेज था, बट वोल्टेज में वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम था, सिमिलरली एनर्जी का जूल और चार्ज का कूलम था, सो इट्स यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट, दोनों का यूनिट सेम है। बट इसका मतलब ये हो गया कि EMF इज ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ वोल्टेज, बट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, सो लेट्स क्विकली लुक एट द डिफरेंस। ओके, ये आपके सामने दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, ये EMF है, ये देखिए दो टर्मिनल है, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज अ टर्मिनल A, दिस इज अ टर्मिनल B, एंड व्हेन चार्जेस आर पुशिंग फ्रॉम बिटवीन द फर्स्ट टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, वी आर कॉलिंग इट अ वोल्टेज। यानी ये जो वोल्टेज है, ये क्या है हमारे पास सामने आपके आ रहा है स्लाइड में, वोल्टेज इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, द वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ अ यूनिट चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये तो बात हो गई वही कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन कॉल्ड द वोल्टेज। बट व्हाट इज EMF, EMF जो है एनर्जी है, दैट फोर्सेस आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से उस चार्ज को मूव करा के इस B तक लेकर आना, ताकि वो B से A या A से B तक मूव कर सके। ये जो धक्का लग रहा होता है, ये जो तवानाई चाहिए होती है, दैट तवानाई इज कॉल्ड द EMF, सही है ना। ये एक तवानाई क्या कहलाती है, EMF कहलाती है। लेट्स क्विकली मूव टू अनदर स्लाइड विच शो द सिमिलर डेमोन्स्ट्रेशन। उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़, इसको थोड़ा सा क्लोजअप कर लें इफ़ यू रियली लाइक द EMF। तो EMF इज़ द एनर्जी एक्चुअली विच ड्राइव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज टूवर्ड्स द point or the terminal point where they can accumulate the energies, but the voltage is a difference of a work done from one point to another point where we get the movement of a charge। सही है जी, ये चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद एक आपके लिए हमने डिफरेंसेस लिए हैं, इन डिफरेंसेस को ज़रा सा गो थ्रू कर लें इफ़ यू रियली लाइक टू सी द डिफरेंसेस। वोल्टेज EMF के क्विकली आ रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दोनों के फार्मूले आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं, V इक्वल टू IR होता है फ्रॉम द ओम्स लॉ, एंड दिस ओम्स लॉ कैन बी री रेक्टिफाई फॉर द EMF, E इक्वल टू I स्टैटिक R प्लस R है, दोनों आगे आने वाले हैं। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कस दीज इन डिटेल राइट नाउ, और ये डिफरेंसेस आपको याद रहने चाहिए। अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड डिफरेंसेस, यू मे विजिट दिस website difference between .net, and you will get a lot of differences among the different quantities. If you are really interested, you may visit that one. Hope you are liking this lecture. If you really like this lecture, consider subscribing our both channels. This is Mazhar Manzoor, and from my side the lecture is about to finish. Take care of yourself. Allah Hafiz.